Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Friends, I welcome you all for the SYBSc Chemistry Paper 2 Semester 4 and we have started with the 6th unit, that is Uses and Environmental Chemistry of Volatile Oxides and Oxoacids. So friends, in our last lecture we have already discussed about the various oxides and oxyacids of nitrogen, sulfur and phosphorus. So one by one we have discussed about their properties, how they are prepared and what are their different uses. So in today's lecture we will discuss about their environmental aspects. Environmental aspects means how they react in the environment and how they affect the human being as well as his surrounding. So first of all we will discuss about the environmental aspects of sulfur. Okay, so we have already discussed how the oxides of sulfur are formed. Now we will see what are their different impacts on human being and his environment. So the oxides of sulfur, especially sulfur dioxide, is a chemical compound with the formula SO2. We all know SO2 is the sulfur dioxide and it is a common pollutant found in the air. So SO2 is produced by volcanoes and in various industrial processes. So these are the basic sources which are natural as well as man-made sources which produces SO2 in the environment. Since coal and petroleum often contain sulfur compound, their combustion generates sulfur dioxide. तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि जब जब कंबर्शन होता है फॉसिल फ्यूल का, वहाँ से भी SO2 निकलता है. Further, the oxidation of SO2 usually in presence of catalyst like NO2, it forms H2SO4 which causes acid rain. So what is acid rain, that we will see in the next some slides. So the presence of high level of sulfur dioxide has a negative effect on human health and the society. So ये जो SO2 produce होता है, SO2 और SO3, when it comes in contact with water, it forms H2SO4. Okay, so SO2 itself is quite harmful और उसके वजह से जो H2SO4 बनता है वो उससे भी ज़्यादा harmful होता है. So when inhaled sulfur dioxide, it get quickly dissolved in the moisture on the lining of the lung and nose. क्यों ये हमारे बॉडी को इरिटेट करता है या हजार्डस होता है? क्योंकि जैसे ही हम लोग SO2 को इनहेल करते हैं, it reacts with the water content of our lungs and nose and it gives burning sensation. Okay, तो जो हमारे नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसका भी बर्निंग होता है क्योंकि वहाँ से सारा जो मॉइस्चर है वो SO2 एब्जॉर्ब कर लेता है. So this is clear to anyone who accidentally inhales the smoke from a match being stuck. तो जैसे ही हम लोग इसको इनहेल करते हैं, इस तरीके का बर्निंग सेंसेशन हमें अपने आप आ जाता है. सो इट हैज़ क्रोनिक इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. कुछ इफेक्ट्स एकदम फटाक से दिखाई देते या फिर कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं जो बाद में दिखाई देते हैं. सो एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ SO2 लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी इलनेस. तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एज वेल एज हार्ट डिसीजेस. इवन चिल्ड्रन टेंड टू मोर वर्नरेबल ड्यू टू लेस डेवलप्ड लंग. छोटे बच्चों के लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं होते तो उनको SO2 और H2SO4 ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. सो एज वी ऑल नो दैट these are very harmful and when these type of oxides come in contact with water they produce oxyacids. और उसी तरह अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आते तो दे अगेन गेट मोर हार्मफुल बिकॉज दे इलेक्ट्रॉनिकली गेट एक्साइटेड और ये इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड SO2 और भी ज़्यादा हार्मफुल होता है. सो इस तरीके से SO2, SO3 एंड H2SO4 आर क्वाइट हार्मफुल टू आवर बॉडी. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउ डिफरेंट रिएक्शन टेक प्लेस है ना. तो राइट हैंड साइड के पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि देर आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स लाइक CO, CO2. उसी के साथ कौन आता है? SO2, SO, NO2. तो ये सारे जो ऑक्साइड्स है हम वन बाय वन देखने वाले हैं. एंड मोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कम इन दिस पर्टिकुलर
series where these all are called as primary air pollutant. तो ये सारे जो है वो अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उनसे ऑक्सी एसिड्स बनते हैं जो अर्थ के सरफेस पे आकर हम सब लोगों को ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं. देन देर आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, okay, like SO3, H2SO4, H2O2, hydrogen peroxide, etc., which are also quite harmful. और इन सब के अलग अलग सोर्सेस जो है वो है नेचुरल सोर्सेस एज वेल एज स्टेशनरी सोर्सेस जो कि इंडस्ट्रीज है, एंड द मोबाइल सोर्सेस लाइक ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स. सो दीज ऑल कॉज वेरियस टाइप ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है दे आर प्रोड्यूस व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न. सो मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑक्साइड्स अमंग देम इज सल्फर डाइऑक्साइड. और क्या क्या इम्पैक्ट दिखाते? दिस गैस इज क्वाइट पॉइजनस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इज कॉजेस अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड वेरियस अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ओनली ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करते पर प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं. सो इन प्लांट्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मेक्स द फ्लावर बर्ड स्टिफ एंड मेक देम फॉल ऑफ. मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं तो प्लांट को भी अफेक्ट करते. जो छोटी कलियाँ होती है, बर्ड्स होते हैं, वो एकदम से स्टिफ हो जाती है और उनके फ्लावर नहीं बन पाते, अब उसके पहले ही वो नीचे गिर जाते हैं. हैम्परिंग इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल. मतलब पूरे प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, क्योंकि अगर फ्लावर्स नहीं रहेंगे तो आगे जाके फ्रूट नहीं बनेगा और आगे और कोई पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं रहेगा. सो दिस वे प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे वो बहुत गलत तरीके से क्रश कर देता है. देन सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन it comes in contact with water it gives H2SO4. So it is main component in killer type of smoke. आगे हम लोग देखेंगे कि स्मोक क्या होता है और ये स्मोक का मेन कंपोनेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड. Also the presence of particulate matter in polluted air catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to sulfur. मतलब there is again reversible reaction. सो सल्फ़र डाइऑक्साइड से भी सल्फ़र बन सकता है एंड दीज ऑल पोल्यूटेंट्स आर वेरी मच हार्मफुल टू आवर बॉडी. तो हम लोगों ने सल्फ़र डाइऑक्साइड के अलग अलग इम्पैक्ट्स देखे. नाउ वी विल सी द मेजर इम्पैक्ट ऑफ H2SO4 विच इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन. तो क्या होता है कि एसिड रेन मतलब व्हेन ऑक्सी एसिड्स, है ना, अभी हम लोगों को पता है व्हाट इज़ ऑक्सी एसिड्स. So oxide acids of sulfur are sulfurous acid and sulfuric acid, है ना. तो ये जो है दोनों एसिड्स दे आर क्वाइट हार्मफुल. और उसी के साथ नाइट्रोजन के जो एसिड्स है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ऑल आर रियली वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी. तो इनका होता क्या है कि वेन एवर फ्रॉम स्टेशनरी सोर्सेज लाइक we can say various industries, fertilizer industry, H2SO4 plant, as well as natural sources like volcanoes and mobile sources like automobiles, इनसे NO2 और SO2 डेवलप होता है, क्रिएट होता है और वो स्लोली एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है. सो व्हेन इन कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HNO3 फ्रॉम NO2 एंड H2SO4 फ्रॉम SO2. तो ये दो तरीके के एसिड अपने आप बन जाते एंड दीज एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन. ओके, तो जब ये रेन वाटर के साथ मिलके नीचे आते सरफेस पे अर्थ के, दे फॉर्म एसिड रेन. तो इसीलिए आजकल कहा जाता है कि पहला जो बारिश है उसके अंदर नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि तब एसिड रेन होता है. ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में एसिड नीचे आता है विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. और ह्यूमन बीइंग को तो वो बहुत अफेक्ट करता ही है. सो दिस वे दिस एसिड रेन इज़ ऑलवेज कम with the contact with normal rain and it affects the crops, drinking water as well as जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट हमारे मोन्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स है, उन्हें भी वो ख़राब कर देता है. सिंपल टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ देयर बट बिकॉज ऑफ दिस एसिड दिस नॉर्मल रेनफॉल बिकम कॉम्प्लेक्स. ओके,
और ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म करता है। उसी तरह ये हमारे वाटर रिजर्वायर में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए ड्रिंकिंग वाटर भी हमारा ख़राब होता जाता है। सो द फॉलिंग रेन एंड स्नो ऑल्सो रिएक्ट विद these ऑक्साइड or these pollutants, and they often form mixture of H2SO4 and HNO3. So these pollutants are quite harmful. तो इस वजह से क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है जैसे कि ताजमहल विच इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, ये सारे रुइन होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. सो दिस एसिड रेन टेंड्स टू have a natural acidic pH of near about 5 to 6 due to the reaction of atmospheric CO2. तो ये एसिड है तो ऑब्वियसली देर इज़ ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड ड्यू टू CO2, और बिकॉज ऑफ दैट द pH ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर इज़ वेरी लेस, है ना. तो इस वजह से ये जो एसिड रेन है इट हैज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारे लोगों को, सारे एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्मफुल साबित होता है. सो इट ऑल्सो अफेक्ट द इकोसिस्टम्स ऑफ वाटर, फिश, वेजिटेशन, स्टोन, उसी तरह सॉइल, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स है जो मार्बल से बने हुए हैं, इन सब को एसिड रेन की वजह से बहुत परेशानी होती है. देन देर इज़ ऑल्सो सीवियर प्रॉब्लम लाइक एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो अच्छी सॉइल है जहाँ से अच्छे क्रॉप्स निकलते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं. सो दिस वे इट अफेक्ट्स द फ्लोरा, फाउना एंड द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. अगर सॉइल के अंदर माइक्रोब्स है वो ख़राब हो रहे हैं या डेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अफेक्ट करता है. So this way there is damage to the young growing plant and also photosynthesis. So इस तरीके से ये पूरा सिस्टम को ख़राब करने में बहुत अच्छी तरह से साबित होता है. So not only affecting plants, soil, but it is also corrosive to our lungs, skin as well as hair. So this way acid rain directly or indirectly सारे ह्यूमन बीइंग को, प्लांट्स को और उसके एनवायरनमेंट को हार्मफुल साबित होता है. सो दिस इज़ ऑल द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स ऑक्सी एसिड्स. देन वी विल डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 बनता है उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनता है, और वो भी एक तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होता है बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द एसिड रेन. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एयर एंड फॉल एज एसिड रेन. ये अभी हम लोगों ने देखा. सिमिलरली दिस एसिड रेन इज़ वेरी कोरोसिव to the metal structures as well as the marble buildings. So they destroy building in a particular chalk stone, limestone or marble, जैसे कि ताजमहल. This acid rain is quite harmful to the forest as chemical in the soil damages the tree. जिस चीज़ पे गिरता है एसिड रेन उस चीज़ के लिए हार्मफुल साबित होता है. प्लांट्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि उनका लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, फोटोसिंथेसिस डिस्ट्रॉय हो जाता है. सॉइल पे गिरता है तो सॉइल के अंदर के माइक्रोबियल सिस्टम को डैमेज करता है एंड देयरफॉर द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल. Similarly, when it goes to the water reservoirs, it will kill aquatic life because of toxic elements and it makes the lake acidic. पूरा पानी because of acid rain पूरा acidic हो जाता है and because of that the animal living in them can die. Okay, so pH level कम हो जाता है, water acidic हो जाता है, इसीलिए उनके अंदर के plants और animal दोनों death हो सकते हैं. So this way it has severe harmful impact on animals as well as plants. उसी तरह अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, सो बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देर इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती. ओके, देन द एडिमा ऑफ लंग्स, corrosion of teeth, okay, cilia action which penetrates dust soot in our lung.
मतलब लंग के अंदर जो छोटे छोटे सीलिया होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं और उस वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर सकते. So in nowadays or in this pandemic situation, we all have realized the importance of our lungs and how they are helping us in breathing. तो अभी सब लोगों को कोरोना की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है. सो इट कैन बी द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्साइड्स, जिनकी वजह से हमारे लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं और कोरोना की वजह से उनका प्रॉब्लम और बढ़ रहा है. सो these are the severe harmful impacts of nitrogen and its oxides. Then the one more impact of nitrogen dioxide is a photochemical smog. Okay, so what is this photochemical smog? Whenever these nitrogen oxides they come in contact with the sunlight, they form photochemical smog. So what happens? Photochemical smog is actually extreme form of the atmospheric pollution resulting from the internal combustion engines. तो अलग अलग नेचुरल सोर्सेस, उसके बाद स्टेडी सोर्सेस जो एक जगह पे होते हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज़ एंड द मोबाइल सोर्सेस लाइक ऑटोमोबाइल्स, they give out the nitrogen oxides as well as sulfur dioxide when they come in contact with smoke, मतलब धुआं as well as fog. तो इस fog और smoke इन दोनों का मिलके क्या बन जाता है? स्मोग, है ना. सो स्मोग इज द वर्ड विच कम फ्रॉम स्मोक एंड फॉग. तो इन दोनों की वजह से देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट. तो हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टेशनरी सोर्सेज लाइक इंडस्ट्रीज़, फिर व्हीकल्स, दे आर प्रोड्यूसिंग NO2, है ना, और वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट हार्मफुल. ये सारे फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनसे ऑक्साइड्स बन जाते हैं. दीज ऑक्साइड्स व्हेन इन कम इन कांटेक्ट विथ सन हैज़ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. उसके वजह से ये जो ऑक्साइड्स हैं और ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं एंड देयर इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. So you can see that these oxides and hydrocarbon they come in contact with atmospheric oxygen as well as sun rays और फिर photochemical reaction होके there are formation of very harmful secondary pollutants which is called as photochemical smoke. So they have oxidants as well as ozone. फिर there are other some secondary pollutants like PAN. तो PAN क्या होता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. देन देर इज़ ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड्स, एक्रोलिन. ऑल्सो देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ PBN. जैसे PAN बनता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, उसी तरह क्या बन सकता है? पेरोक्सिल बेंजोइल नाइट्रेट. So these are quite harmful for our hair as well as nail. This can also cause various disorder in respiratory tract as well as it also react with your brain cell and there is increase in stress as well as eye irritation. तो हर जगह से ये सारे पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. So normally these type of reactions are because of the oxides of nitrogen, sulfur, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और mainly it is because of hydrocarbons. So various hydrocarbons are also responsible for formation of photochemical smoke. तो ये photochemical smoke जो है it has very bad impact on our system as well as the environment. सो इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आइज़ में इरिटेशंस होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होते हैं एंड सम टाइम इट आल्सो कॉजेज सीवियर डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ हजार्ड्स. सो देयरफॉर दिस फोटोकेमिकल स्मोक इज़ क्वाइट हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग. फिर इसके बाद हम थर्ड ऑक्साइड देखेंगे, दैट इज़ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस भी इक्वली हार्मफुल है और फॉस्फोरस जब ऑक्साइड बनता है उसके ऑक्साइड से आगे जाके फॉस्फोरिक एसिड बनता है. ओके,
So here we can see that the formation of various phosphates are actually initially very necessary for the growth and maintenance of animal as well as ह्यूमन बींग्स बोथ. हमारे जो बोन्स है, टीथ है ना, उसके लिए एक्चुअली फॉस्फेट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. सिमिलरली दे आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड आरएनए. सो प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए भी फॉस्फेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि इन द सेंटर ऑफ डायग्राम वी कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट. तो वो कहाँ कहाँ यूज़फुल होते हैं. राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं कि मिनरल सरफेसेस लाइक क्ले, वाटर, फिर सॉइल, इसमें सारा फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है जो प्लांट्स के काम में आता है. उसके नीचे देयर आर सेकेंडरी मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फेरस फॉस्फेट एक्सेट्रा. देन दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्राइमरी मिनरल्स लाइक एपेटाइट. फिर these type of phosphate solutions are important for microbial biomass. बायोमास जो माइक्रोबियल बायोमास है उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. देन देर इज़ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस. ये ऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ इन अ ऑक्साइड फॉर्म और ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है, देन इट इज़ प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जब तक वो एक लिमिट के अंदर होता है तब तक वो बहुत यूज़फुल होता है. सो इन फ्रेश वाटर ऑल्सो फाइटोप्लैंक्टन्स दैट इज़ फ्लोटिंग algae which also absorb soluble inorganic phosphate and then they convert it into organophosphates. So ये organophosphate is a source for zooplanktons. When these zooplanktons are eaten by other aquatic animals, they come in the ecosystem, right? It is also useful for the other animal as well as human being. So all this form of life and their death, decay cycle, it is all responsible for the this type of phosphorus cycle. So in large amount of phosphate is present in water, the algae and the weeds, they grow rapidly and they may choke the waterways. तो जब उसकी क्वांटिटी पानी में बढ़ती है फॉस्फेट की, तो अलगी बहुत ज़ोर से बढ़ते हैं और उसकी वजह से जो वाटर है उसमें क्लॉगिंग आ जाता है. सो जब वो वीड्स या जो प्लांट्स है वो बढ़ते हैं तो उसके वजह से पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है और उसकी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता एंड दे गेट problem in their breathing as well as death also occur. So this way the phosphate pollution of river and lake is actually cause of eutrophication. Okay, so it reduces the dissolved oxygen in water and then it disturb the natural food chains and ecosystem. So this way जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र हार्मफुल है, उसी तरह ज़्यादा अमाउंट में अगर फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स बनते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द oxides of nitrogen, sulfur and phosphorus. Here we ends with our syllabus and I wish you all the best for your exams. Thank you.